Hello. So, my dear students, today we are going to discuss about the chapter areas related to the circle. Okay. So, everybody is used to deal with the circle from class 7th, 8th, 9th, and so let's refresh it without wasting the time. Okay. So many times we have seen this type of wheel, okay, and design of this type, and washer of between the nut and bolt, and design of cake, and after cutting the cake this piece also, and this wheelbarrow. So यहीं से एक चीज़ और ले लेते हैं कि अगर आप लोगों ने किसी भी तरह से ये ना सोचा हो कि इस व्हील को सर्कल से कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा. लेट मी टेक माय पेन विद द रेड इंक. ओके, सो दिस इज माय सेंटर ऑफ दिस सर्कल and the spokes of this wheel behave like radius. So be practical, understand from this slide also. And this is the circumference of the circle. Okay, ये circumference of the circle हो जाएगी. So every figure related to this. Okay, washer also have a center, but उसमें दिखाया नहीं गया है. So recall that the distance covered by traveling once around a circle is its perimeter. This is the perimeter of the circle, usually called its circumference. You also know from your earlier classes that circumference of a circle bears a constant ratio with its diameter. आप लोगों ने 9th class में definition पढ़ी होगी. What is pi? Okay, it is the ratio circumference and the diameter of the circle. So again, I would like to elaborate here. This is denoted by the Greek letter pi, read as pi. In other words, pi is equal to circumference upon diameter, circumference of circle. Okay, so when you cross multiply, circumference is equal to हो जाएगा pi into diameter. So diameter that is equal to the 2r, twice of radius. Am I right? So that will be 2 pi r. So circumference of circle is equal to, फर्स्ट फार्मूला मैंने आपको रिकॉल कराया, मैं नहीं कहता हूँ, मैं बता रहा हूँ 10th क्लास में आकर के, कोई मीनिंग नहीं है, सब बच्चों को आता है. एंड circumference of circle is equal to 2 pi r. 2 एंड पाई की वैल्यू आप 22/7 और 3.14 एज यूजुअल क्वेश्चन में जैसा दिया हो वैसा बिहेव करें, या फिर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो एज ए कैलकुलेशन में जो आपको इजी पड़ता है आप उस हिसाब से उसको डील कर सकते हैं. एंड रेडियस ऑफ द सर्कल आर. ओके, सो मैनी स्टूडेंट राइट दिस फार्मूला दिस टाइप, वो लिखते हैं पाई इंटू और 2 इंटू आर को वो एज इट इज डायामीटर लिख देते हैं, तो पाई इंटू डी वो लोग कई बच्चे लिखते हैं. नो प्रॉब्लम. तो अगर डायमीटर गिवन दिया हुआ है सर क्वेश्चन में सर्कल का, तो पाई इंटू डी हो जाएगा, और अगर रेडियस दी गई है डायरेक्ट तो 2 पाई आर में पुट कर दीजिए, या आर को डबल करके डायमीटर निकालिए, पाई इंटू डी में भी सेटल हो जाएगा. नो प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू कि द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट gave an approximate value of pi. He stated that pi is equal to 62832 by 20000, which nearly equal to the 3.1416. देखिए इस 476 और 550 AD में आर्यभट्ट ने भी इस पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, जो नियर बाई 3.14, और आगे चल करके उतना बड़ी वैल्यू वो उस टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पास सुपर कंप्यूटर भी नहीं था. सो नो प्रॉब्लम इज देयर. सो आगे कभी क्वेश्चन कंपटीशन के लिए अच्छा हो सकता है कि व्हाट कैलकुलेशन टेक बाय आर्यभट्ट एट द प्लेस ऑफ पाई व्हेन ही गॉट द कैलकुलेशन 3.1416. तो पाई की वैल्यू उन्होंने क्या ली थी, अब मैं इसको नंबर्स में देखूंगा तो 62,832 है, एंड दैट इज अपॉन 20,000 है. बिहाइंड इसके क्या लॉजिक्स हैं वो अभी 10th क्लास में डिस्कस नहीं करते हैं, फिर आगे कभी बात करेंगे.
Interesting to note that using an identity of great mathematician genius Srinivas Ramanujan in 1887 to 1920 of India, mathematicians have been able to calculate the value of pi correct to million places of decimal, as you know from chapter 1 of class 9. So in class 9th, I think first chapter is the number system. Pi is an irrational number and its decimal expansion is non-terminating and non-recurring, yani non-repeating. However, for practical purpose, we generally take the value of pi what? 22 upon 7 और 3.14 अप्रॉक्स. ये भी परफेक्ट वैल्यू पाई की नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली है, अप्रॉक्स वैल्यू है. ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ सर्कल. एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है ये, एक्टिविटीज़ में भी बच्चे कई जगह करते हैं, क्लास 9th में ही कर लेते हैं, 10th में इसको एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी ने. व्हेन वी टेक ए सर्कल एंड डिवाइडेड इट इनटू 8 डायमीटर, 8 डायमीटर्स में डिवाइड करेंगे तो 16 पार्ट्स हो जाएंगे इसके टोटल मिला करके. देखिए कुछ ब्लू कलर्स हैं और कुछ आपके वाइट्स में है ये, और इस सीक्वेंस क्या है यहाँ 1 से लगा करके, और ये टोटल मिला करके क्या हो गया 16 हो गया. एंड ईच पार्ट कट करके इसको हम कुछ इस तरह अरेंजमेंट करेंगे. ये फर्स्ट पार्ट उन्होंने इस तरह से अरेंज किया, बट यू रिमेंबर जो आपका सरकमफियरेंस का पार्ट है फर्स्ट वाला ये पार्ट, ये अगर यहाँ पर नीचे डाउनवर्ड या अपवर्ड में यहाँ एडजस्ट हुआ है तो नेक्स्ट पार्ट जो नंबर 2 कट करेंगे वो उसका सरकमफियरेंस का पार्ट यहाँ आना चाहिए. इसी तरह से इसको हम अरेंज करते चले जाएंगे. अगर इसको और थिक एंड थिन 16 से हटा के और थिक एंड थिन पार्ट्स में करते चले जाएंगे तो ये जो आपको हल्का सा कर्व दिखता है ये कर्व भी नहीं दिखेगा, एक डॉट पॉइंट दिखेगा, बिल्कुल डॉट. और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपकी रेडियस ऑफ द सर्कल है. वेरी गुड. अगर ये रेडियस ऑफ द सर्कल है तो ये जो पार्ट यहाँ पर आया है, देखिए जो मैं अभी डिज़ाइन दे रहा हूँ ये पार्ट, लेकिन मैंने बहुत थिक एंड थिन करके इसको कट करके यहाँ पेस्ट किया है. सो दैट इज इक्वल टू ओनली पाई आर, क्योंकि आप सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. यहाँ पर भी है और देखिए ऊपर साइड में भी सरकमफियरेंस है. सो दैट इज ऑल्सो पाई आर. अगर आप इसको एज ए पैरेललोग्राम ले लेंगे तो ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट यानी पाई आर इंटू आर. अगर आप इसको एज ए रेक्टेंगल ट्रीट करेंगे तो इस रेक्टेंगल के लिए आपको जो लेनी पड़ेगी नियर बाई ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी हाफ ऑफ 2 पाई आर हो जाएगी, और ब्रेथ उसकी आपकी आर हो जाएगी. और जब मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ तो दैट विल बी एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ओके, ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, एनसीईआरटी ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सो नेक्स्ट मैं इस पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, और ये एग्जांपल बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट. द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर. याद रखिएगा, बिल्कुल जस्ट लाइक ए कस्टमर बिहेव करिए यहाँ पर मीटर. 1 मीटर की कॉस्ट ₹24 है. ओके, तो टोटल फेंसिंग की जो कॉस्ट आई है वो आई है ₹5280. द फील्ड इज टू बी प्लाउड at the rate of ₹0.50 per meter square. Find the cost of plowing the field. और उसने क्वेश्चन में कह दिया है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7. यहाँ क्लियर कर दिया देखिए उसमें कि पाई की वैल्यू 22/7 ही रखना है, नॉट 3.14, क्योंकि आपका आंसर 22/7 से इजी आ जाएगा. सो लेट्स बी सॉल्व इट. लेंथ ऑफ द फेंस कैसे आएगी? लेंथ ऑफ द फेंस आएगी इस टोटल जो कॉस्ट है उसको इस रेट से डिवाइड कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी लेंथ ऑफ द, ये देखिए फेंस आ जाएगी 220 मीटर. आ गया ना. इसका मतलब ये हुआ कि 220 मीटर इस लेंथ में क्या लगना है, फेंसिंग लगनी है. तो ये सरकमफियरेंस ऑफ द फील्ड हो गया, क्योंकि उसने कहा है सर्कुलर फील्ड है. तो सर्कुलर फील्ड में इस तरह से फेंसिंग लगा दीजिएगा, यहाँ इस साइड में, इस डायरेक्शन में, इधर इधर चारों तरफ. ओके, तो आपको ये पता चल गया कि इसमें कितना आपका फेंसिंग का वायर लगना है. नो प्रॉब्लम. सो आर मीटर इज द रेडियस ऑफ द फील्ड, वी लेट इट. सो व्हाट इज द सरकमफियरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, और सरकमफियरेंस कितना है 220. पाई की वैल्यू क्या पुट कर दी उसने यहाँ 22/7. सिंप्लीफाई किया तो रेडियस कितनी आ गई 35 मीटर. नो प्रॉब्लम. इफ रेडियस ऑफ द फील्ड इज 35 मीटर, सो नाउ ही कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फील्ड. एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस्ट निकालनी है प्लोइंग ऑफ द फील्ड.
तो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 एंड रेडियस अभी अभी आपने निकाला है 35 और 35 आर स्क्वायर है ना. व्हेन यू सिंप्लीफाई इट एंड कैलकुलेट, राइट, तो आप चाहें तो एक सिंगल नंबर भी मीटर स्क्वायर में रख सकते हैं. लेकिन उसने क्या किया इस क्वेश्चन में, उसने कहा जब मेरा एरिया ही आ गया है तो क्यों ना मैं अब इसकी कॉस्ट निकाल लूँ. अगर 1 मीटर की स्क्वायर की कॉस्ट क्या दी है 50 पाइस या रुपीज़ 0.50. सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड इज, मल्टीप्लाई किया इस एरिया के साथ उसने पर मीटर स्क्वायर के रेट से, तो इतने पैसे लगे उसको रुपीज़ 1925. ओके. तो बच्चे को इसकी लैंग्वेज के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा ढालना है. और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि सर्कल की सर्कमफियरेंस का भी फॉर्मूला अप्लाई होता है 2 पाई आर, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला भी पाई आर स्क्वायर अप्लाई हो रहा है. और इसके साथ तीसरा पॉइंट और पूछा है कि पर मीटर स्क्वायर प्लोइंग की फोल्ड जो उसने रेट दे रखा है प्लाउ करने का फील्ड को, तो उस टोटल एरिया से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फील्ड की टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि इसको प्लाउ करने में कितना कॉस्ट आई है. ओके. एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, एक्सरसाइज का है, और मैं इस क्वेश्चन को ऑलवेज आई जे के बोलता हूँ. आई जे के का मीनिंग होता है इसको ज़रूर करें. और अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर लिखें. और क्वेश्चन बहुत फेमस है क्योंकि इसमें भी आपको व्हील ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर इज दिया हुआ है. हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स. तो आपको अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है, जबकि उसमें कार की स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर. ओके, कर सकते हैं. और बुक का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का, तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मैं CBSE के लिए, मेरी नज़र में ये IJK है. ओके, आगे बढ़ता हूँ. लेट्स बी डिस्कस सम कॉन्सेप्ट हियर. नंबर 1, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द सेंटर इज, अगर किसी सर्कल के सेंटर का डिग्री मेजर एंगल 360 है, सपोज ये पूरा एंगल 360 दे दिया गया है. अरे तो 360 दिया है और फिर आपसे अगर एरिया ऑफ दिस पार्ट पूछा जाए तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. सिंपल. नेक्स्ट, व्हेन द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर इज 1, अगर ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री अगर मान लीजिए ये देखिए इतना सा मैंने यहाँ पर ये सेक्टर बनाया और यहाँ पे 1 डिग्री ले लिया, तो अब जब आपका 360/360 था तो अब क्या हो गया 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. 1 डिग्री के लिए ये हो गया. और अगर ये थीटा डिग्री हो जाए ये एंगल, तो फॉर्मूला क्या जनरेट हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. बहुत से बच्चे अलग अलग तरीके से इसको समझते हैं. मैं तो इस तरह बता देता हूँ कि बेटा टोटल एंगल ये कंप्लीट 360 है, आउट ऑफ 360 में से थीटा डिग्री उसने टेकन अप लिया हुआ है, तो बताओ इसको कैसे लिखोगे. तो बच्चे बोल देते हैं θ/360 आउट ऑफ दिस होल पाई आर स्क्वायर पूरे एरिया में से, तो इस सेक्टर का एरिया आपको मिल जाएगा. ओके, वी ऑब्टेन द फॉलोइंग रिलेशन और फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सेक्टर इज, फर्स्ट, ओके, इफ एंगल इज थीटा मीन्स 20 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ऐसे ही आप लेंथ ऑफ एन आर्क भी डिस्कस कर सकते हैं. ये है लेंथ ऑफ आर्क, सपोज AB, ये मैंने लेंथ ऑफ आर्क ले लिया आपकी AB. इसको कुछ इस तरह से मेंसुरेशन में लिखते हैं, लेंथ ऑफ आर्क AB. ऊपर एक हल्का सा कर्व बना देते हैं और कुछ नहीं, ये इस तरह का. तो अगर आपको वैसा नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, सेक्टर ऑफ एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. याद रखना एरिया में क्या है इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क में क्या है इंटू θ/360 के साथ 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, सिंपल सा रिमार्क भी मैंने यहाँ डाल दिया. व्हेन वी राइट सेगमेंट एंड सेक्टर वी विल मीन द माइनर सेगमेंट एंड द माइनर सेक्टर रिस्पेक्टिवली अनलेस स्टेटेड अदरवाइज. आप साफ साफ लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं. इन दिस क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री. अब देखिए थीटा आपका ये हो गया 30 डिग्री, रेडियस आर आपकी हो गई कितनी 4 सेंटीमीटर. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. लेट्स डिस्कस प्लीज. So area of sector there is no problem, but the area of sector is OAPB. ध्यान से देखना, OA, वैसे तो OAB अगर लिख दोगे तो that is a lot of confusion कि OAB 3 वर्टाइसेस दिए गए हैं, कहीं ट्राइंगल तो नहीं है.
इसलिए यहाँ लेंथ ऑफ आर्क के बिटवीन एक पॉइंट बना देते हैं P, तो इसको क्या बोलेंगे OAPB। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज गिवन 30 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू उसने खुद भी कहा है क्या रखना है 3.14 इंटू रेडियस जो आपके पास है दैट इज 4 इंटू 4। When you calculate it, it will be 12.56 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लेंगे। और आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर कैसे आएगा? मेजर सेक्टर ऐसे आएगा कि जैसे ही आप इस फिगर को देखेंगे तो ये फिगर आपका पूरा होल सर्कल है। होल सर्कल में से अगर ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दिया जाए तो होल सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये आपने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया है। तो लिखा आप करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। सो पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, ये देखिए, माइनस OAPB जो सेक्टर का एरिया है वो आपने अभी कैलकुलेट किया है 4.19, माइनस कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट विल बी 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। डिजिट्स में आगे आपका कंप्लीट नहीं आ रहा होगा, इसलिए उन्होंने इस आंसर को अप्रॉक्स में छोड़ दिया। आप एक सिंगल डिजिट के अलावा आफ्टर डेसिमल डबल डिजिट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसका एक ऑल्टरनेटिव बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए क्या मेथड है ये। बच्चे ने कहा सर मैं माइनर सेक्टर का एरिया निकालना सीख गया, तो क्या मेरा ये एंगल जो सेंट्रल का है ये क्या होगा? ये होगा 360 माइनस 30 यानी 330, राइट। तो कहता है सर मैं इस सेक्टर में क्या ऐसा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? ऐसा वाला बिल्कुल कर सकते हो बेटा। यहाँ पे लिखोगे 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मेजर सेक्टर देखिए लिखा उसने यहाँ पर, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 330, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर का मीनिंग 16 और 16। व्हेन यू सिंप्लीफाई इट दिस आंसर आल्सो 46.05। अब इस 46.05 का ये 5 अगर हटाओगे यहाँ से तो राउंडेड ऑफ होके यहाँ 0.1 हो जाएगा। ओके, सो यू कैन डील लाइक दैट आल्सो, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। और ये डिज़ाइनिंग वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। और अभी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में बच्चों को जो प्रोजेक्ट बनाने हैं नागालैंड और किसी सिक्किम स्टेट पर शायद, तो वहाँ के प्रॉपर हाउसेस में या उनके क्लॉथ्स की डिज़ाइनिंग में, कलर्स में कुछ इस तरह के डिज़ाइन भी आते हैं। सो यू हैव टू कोरिलेट देम प्रोजेक्ट में कि हम NCERT के किस क्वेश्चन को नागालैंड से रिलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। और शेडेड रीजन में आप ये देखिए, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड्स दे रखी है क्वेश्चन में, बिल्कुल है 14 सेंटीमीटर। ये पॉइंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है जो एक सेंटर, अब क्योंकि ये सभी कॉन्ग्रेंट सर्कल दिए हुए हैं तो सर्कल की रेडियस भी आपको यहीं से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी जरा ध्यान से देखना, ये देखिए, व्हेन यू ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू द DC, तो बताइए ये टोटल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो 14 का ये कितना हो जाएगा डायमीटर, इसका 7 हो जाएगा, तो ये भी 7 हो जाएगा, तो रेडियस इसकी क्या आ जाएगी 7/2 आ जाएगी। अब आपको शेडेड पोर्शन जो ब्लू पार्ट दिया हुआ है इसका एरिया निकालना, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस 4 सर्कल 4 पाई आर स्क्वायर, और सर्कल की रेडियस क्या है 7/2, टोटल कैलकुलेशन से आएगा 154, तो आपका शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक बार देखो, सेल्फ करो, इमीडिएट आंसर आएगा आपका, डन। अनदर क्वेश्चन इज हियर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन दिस फिगर वेयर ABCD इज ए स्क्वायर। यहाँ पर भी ABCD स्क्वायर है, ईच साइड 10 सेंटीमीटर है, नो डाउट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन with each side of the square as diameter, okay, use pi 3.1। देखिए सेमी सर्कल ईच साइड, पहले अगर हम साइड DC को ले लें और ये डायमीटर है तो इसका सेमी सर्कल देखिए ये आया है, ये सेमी सर्कल। ऐसे हर साइड पर डायमीटर लेके आप सर्कल ड्रॉ करते चले जाइए और ये ब्यूटीफुल आपकी डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। अब इसको डील कैसे करना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो इन्होंने क्या किया है, पहले फर्स्ट और थर्ड का एरिया निकाला, दैट इज इक्वल टू द
एरिया ऑफ सेकंड प्लस फोर्थ के। कैसे किया, ध्यान से देखिए। दे हैव मार्क द रीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, देन एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड। अब एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड, फर्स्ट ये है और थर्ड ये है आपका। मैं बताता हूँ कैसे आया। तो एरिया ऑफ होल स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, माइनस कर दीजिए, सिंपल है, आप खुद करके देख लीजिए। करेक्ट, दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों सेमी सर्कल। अब टू सेमी सर्कल का मीनिंग क्या हुआ, वन सर्कल है ना। तो वन सर्कल का एरिया कैसे आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर से आ जाएगा। वैसे इसने टू सेमी सर्कल का 2 लगा के भी रखा है। सो इट विल बी 10 10 या 100। when you simplified this part, when you put the value of pi is equal to 3.14 multiply with 25, it will be 78.5, माइनस करेंगे 100 से तो आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया आपका किसका होगा, इस सेकंड पार्ट का होगा और इस फोर्थ पार्ट का होगा। वेरी गुड, वो उसने किया भी है यहाँ, ये देखिए 21.5 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे आएगा, इन फ्लावर्स का, इनका ये लीफ जो बनी हुई है। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट, ये सब का एरिया निकाल दीजिए आप जो वाइट्स में। सो वो कितना हो जाएगा, 21.5 प्लस 21.5 कितना हो जाएगा, 43। तो 100 माइनस 43 दैट इज इक्वल टू 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब कोई बच्चा NCERT में सॉल्व इस क्वेश्चन को देखता है तो कई बार तो पढ़ने के बाद भी सोचता है पता नहीं प्रॉब्लम में क्या पूछा हुआ है, पता नहीं इन्होंने कैसा कैसा बना दिया है, ये इतनी ढेर सारी लीफ आ रही हैं इसमें, तो ये फर्स्ट और थर्ड ही क्यों निकाल रहा है, पहले इसने सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं निकाला। अरे बाबा, वो कॉन्ग्रेंट फिगर है एक दूसरे की, अगर फर्स्ट प्लस थर्ड निकालोगे तो उतना एरिया सेकंड प्लस फोर्थ का हो जाएगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या, आप तो मैं इन दोनों को IG के देता हूँ और बस ये मैंने आपके लिए रखे हैं, डू योर सेल्फ, बट मैं हिंट जरूर बताऊंगा इनका, देन आई विल क्लोज द लेसन। सो ABC इज ए क्वाड्रेंट, दिख रहा है ये वाला क्वाड्रेंट सभी को। रेडियस कितनी है इसकी, 14 सेंटीमीटर, नो डाउट अबाउट इट, 14 सेंटीमीटर। एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC। अच्छा, अब BC को इन्होंने डायमीटर ले लिया और इन्होंने एक क्या ड्रॉ कर दिया, सेमी सर्कल। ये देखो, ये देखो, ये देखो, करेक्ट। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सिंपल, इसका एरिया हमको चाहिए, ये ब्लू वाला पार्ट, नो प्रॉब्लम। अगर ये 14 है, ये 14 है, पाइथागोरस से ये राइट एंगल है, नो डाउट, क्योंकि क्वाड्रेंट लगा हुआ है वर्ड वहाँ पे, तो ये आ जाएगा पहले आपका BC बाय पाइथागोरस थ्योरम। BC का आप हाफ करिए तो क्या आ जाएगी, रेडियस। अब आपको क्या निकालना है इसका, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि एक तरीका और भी है इसका, कि अब आप इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लीजिए पूरे का, करेक्ट, और उसमें से फिर ये एरिया सेगमेंट का माइनस कर दीजिए। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल से, राइट। और ये CBSE वालों का बहुत नियर एंड डियर क्वेश्चन है बच्चों, इसको छोड़ना ही मत बिल्कुल एकदम। सेम आपके लिए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन। ये देखिए डिजाइन, अब डिजाइन बनाने के चक्कर में बच्चों को काफ़ी गुमराह कर दिया इन्होंने। स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर की साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच है। अगर आप इसके इस डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे और आप यहाँ से सोचना शुरू करेंगे इस पार्ट से, जहाँ 90 डिग्री पर मैंने रेड सेंटर बना दिया है, तो ये आपको एक सेक्टर नज़र आएगा, करेक्ट। अभी ऊपर के क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है कि फाइंड आउट दिस रीजन ऑल्सो। अगर आपने इतना फाइंड आउट कर लिया तो उतना ही रीजन ये वाला भी दिया हुआ है, यहाँ वाला ये करेक्ट। तो इसको कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, लेट्स क्लियर। और इस जो भी एरिया आएगा उसका आप क्या कर दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा, तो ये पोर्शन निकल आ जाएगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। और ये क्वेश्चन बिफोर लास्ट ईयर शायद सप्लीमेंट्री में भी आया था और मेन एग्जाम में भी आया था, तब स्टैंडर्ड और बेसिक नाम के एग्जामिनेशन नहीं थे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। जो क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं, इस वीडियो में दिए हैं, आप उन क्वेश्चन को किसी एक को भी छोड़ेंगे नहीं। और छोड़ेंगे नहीं मीन्स नहीं छोड़ना है, अच्छे से करना है, समझ के करना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन बनने लगे तो अदर क्वेश्चंस में भी आपके पेन का इंक इतना फास्ट चलेगा कि वो भी आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट आएंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।